हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीडी कोड्स। तो आज हम लोग ऑलिव बोर्ड का लाइव टेस्ट अटेम्प्ट करने वाले हैं टीयर 2 का। सो लेट्स टेक द टेस्ट। ऐड देखना पड़ेगा क्योंकि हम इसको स्किप कर नहीं सकते हैं। स्टार्ट टेस्ट करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन ऐड कर लेती हूँ। लेट्स स्टार्ट। ऑल द बेस्ट। रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं। Providing medication at medical store without doctor's prescription should be illegal because it has many disadvantages. Government should cancel the license of such medical stores which provides medicine. हाँ बिल्कुल पहला तो सही है। There should be strict laws on all the strict laws made for the inspections for all the medical stores. Strict laws made for the inspection for of all the medical store. तो थोड़ा सा लग रहा है of all is extreme keyword. Without a doctor's prescription should be illegal because it has many disadvantages. I think मेरे ख्याल से both 1 and 2 follow करेगा। इसको मार्क पर रखते हैं। Read the situation and choose the correct action in a lab. Centrifuge run run ends in 5 minutes. Must be stopped promptly for safety. Confirm abstract is due in 6 hours. A collaborator checks in 2 hours. Postures outline is due in next week. What should you do first? प्रिपेयर। सबसे पहले उसने क्या बोला है कि फॉर सेफ्टी ड्यू इन 6 आवर। कोलैब पोस्ट रिमेन द सेंट्रीफ्यूज टू फिनिश द रन एंड शट इट डाउन। रिमेन विद द सेंट्रीफ्यूज। यार लग तो सबसे बड़ा वाला यही लग रहा है, तो मैं इसी के साथ जाकर इसको मार्क पर रिव्यू रखती हूँ। The client mistakenly emails you confidential strategic memo about competitor clearly not intended for you. You opened it, realized the nature within few lines and stopped. Given this question, which of the following is the most ethical responsible? Read it fully to understand the context and delete it. Reply to the client acknowledging mistake. Delete the file without sharing or action and request they send the correct material. I think सबसे सही यही है। सबसे बड़ा ही देख लो तो वही सही लगता है। अब इसमें हमको एड्रेस जो डुप्लीकेट है उसको हटाना है, नहीं डुप्लीकेट बताना है। 6 पहला तो एलिमिनेट हो गया। सनशाइन एनक्लेव सेक्टर 62 नोएडा 21301। मनीष तिवारी 6B। सनशाइन की स्पेलिंग 3rd में गलत है, दूसरा 4th में सही हो। एनक्लेव की स्पेलिंग गलत है दूसरे में, तो यही होगा 7 नेक्स्ट। After omitting letter vowels from O to Z, which letter is third position from the letter that is 13? अच्छा मतलब 8 B C D F G H J K L M N P Q R S T V W X Y Z. 13 from the left end. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 from the left end which is 3 position to the left. अब इसके 3 position left में, यानी 1 2 3 M। next whispering ethereal reverse is was shimmered silently around glowing radiance if the fourth letter of the every third word written in order. क्या if the fourth letter of every third word is written in order, what order is formed? हर fourth letter यानी S और E, S फिर आई थिंक इसका M है, फिर E है, फिर O U है, फिर W है, फिर रेडी I है एंड देन N। तो क्या बताना है? इफ द फोर्थ लेटर ऑफ एवरी थर्ड वर्ड इज रिटन इन ऑर्डर, व्हाट वर्ड इज फॉर्म्ड? अरे सॉरी, एवरी थर्ड वर्ड है, यानी वर्ड्स का मतलब VERS, फिर 1 2 3 4 S के बाद W। मुझे समझ नहीं आया ये क्या चीज़ है यार इसकी। एवरी थर्ड वर्ड, ये तीसरा है, इसका S है, फिर 1 2 3 सन बनेगा। सॉरी SUN, समझने में इतना टाइम लग रहा है यार।
16 का स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर, 18 का, 12 का, 16 टू 14, 14, 18, आई थिंक 16 इन ये पहला वाला ही गलत लग रहा है, बिकॉज वो 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, पहला वाला गलत है क्योंकि वो 32 किसी का स्क्वायर नहीं है. व्हाट इज पी 24 प्लस, अच्छा पी एंड क्यू इज इक्वल टू पी इंटू क्यू प्लस 10. पी इंटू क्यू यानी अगर मैं 24 प्लस 53 करूँ, 437 107 इंटू 1/7 प्लस 10, सॉरी 77 है, क्या कर रही हूँ, 11 प्लस 10 इज 21. 3 है, 8 है, 15 है, 24 है और 35 है. तो 3, 5 का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है, 9 का है और 24 में 11 का है. तो 2 यानी 13 का डिफरेंस होगा, यानी 35 प्लस 13 इज 48. In an examination, the center codes and roll numbers are decided by the initials of the states in a following, or like Delhi का initials of the states. Which of the following is, तमिलनाडु का T से start होगा ना, TN. Next, in a certain code which are not same order, क्या कह रहा है कि which are not in the same order as words. 33 stands for, 33 किसके, अच्छा देखो 26 इन दोनों में कॉमन क्या क्या है, इशू नहीं होगा, ठीक है, इशू कैंसिल हो गया. अब या तो रिजॉल्व है या तो टुडे है, टुडे कैंसिल, तो आई थिंक रिजॉल्व डे उसका इसका आंसर. नेक्स्ट, पॉइंटिंग टू अ बॉय, सुनीता सेड ही इज द सन ऑफ माई हस्बैंड. सुनीता बोलती है ना, तो सुनीता कोई बंदी होगी, उसका पति है. हस्बैंड, सिस्टर, सिस्टर्स ओनली चाइल्ड, ही इज द सन ऑफ, तो उसका सन है. हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू, तो उसका ग्रैंड नेफ्यू है. 7. नेक्स्ट, MNOSTU, देन अपोजिट है तो इसका फिर S हो जाएगा. मेरे ख्याल से PQR ये होना चाहिए, OPQ. देन L का क्या है, L का KL, QR सही है. नेक्स्ट, 15 इज लाइक 235, 15 का स्क्वायर प्लस 225 प्लस 10 किया है. वैसे ही अगर 22 का स्क्वायर कितना होता है, लास्ट वाला देखो अगर, तो 22 का स्क्वायर 484 होता है ना, 22 इंटू 22. हाँ तो 484 लास्ट वाला ही होगा. नेक्स्ट, स्क्वायर प्लस 10 किया है. PQRSTU is sitting in a row from left to right facing north. How many person are sitting to the right of W? अच्छा इसको बाद में करते हैं यार, क्योंकि लंबा है ना सेंटेंस. पहला तो नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज डबल इनइक्वालिटी आ गई है इसमें. E G से ये सेकंड फॉलो कर रहा है सिर्फ. मिरर इमेज बतानी है ना, हाँ ओके. तो थर्ड वाला तो हो नहीं सकता. फिर अगर हम कंपैरिजन खेल लो अगर, तो फिर ध्यान से देखने पे थर्ड तो नहीं होगा, ठीक है. फोर्थ भी नहीं होगा, या तो फर्स्ट है या तो सेकंड है. अब ध्यान से देखना पड़ेगा, अब दोनों को कंपेयर. वेट अ मिनट, नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट भी नहीं होगा ना, सेकंड होगा, सेकंड. पहला तो हो नहीं सकता. ध्यान से देखो यार, पहला तो नहीं है ये, ठीक है. लास्ट वाला भी नहीं है, दूसरे या तीसरे में से कोई एक है. दूसरा नहीं, तीसरा है. 7. इसको बाद में करेंगे. उफ उफ उफ, इसको करते हैं.
आर और टी में क्या रिलेशन है? आर इज द वाइफ ऑफ टी। ये वाइफ है तो टी उसका हस्बैंड होगा। टी इज द ब्रदर ऑफ वी। ठीक। वी और फिर क्यू और टी में क्या रिलेशन है? क्यू इज द सन ऑफ टी। टी और एस में क्या? टी इज द फादर ऑफ एस। एस और डब्ल्यू में क्या रिलेशन है? एस इज द हस्बैंड ऑफ डब्ल्यू, वाइफ है। डब्ल्यू और यू में डब्ल्यू इज द डॉटर ऑफ यू। ठीक। हाउ मेनी मैरिड कपल्स आर इन द फैमिली? एक तो आर टी मैरिड है, एस डब्ल्यू मैरिड है। ठीक है, दो मैरिड हो गए, दो तीन चार पाँच छः सात। देखा जाए तो यार मैरिड तो यू भी किसी के साथ मैरिड ही होगा, तभी उसकी बेटी है। बट हाउ मेनी मैरिड कपल्स? एक तो ये हो गया, यू का डाउट है मुझे। दो तो मिल गया, तीन तीन लग रहा है फिर, क्योंकि यू भी तो मैरिड होगा ना। पर इसमें कपल्स दिया ही नहीं है, यू की पत्नी इतनी तो कुछ गिवन नहीं है, तो मैं टू के साथ ही लगाऊंगी, बिकॉज यही अगर फैमिली है तो। सेवन नेक्स्ट। 149 माइनस का 58, देखो अपॉन 8 इंटू 2 प्लस 62, 29। 149 माइनस टू, पहला तो नहीं होगा। ठीक। दूसरा भी नहीं लग रहा है, बिकॉज 49 दूसरा भी नहीं होगा, प्लस को डिवाइड से इंटरचेंज करने पे कोई फ़ायदा है नहीं। माइनस को नहीं, लास्ट वाला फॉलो करते हैं। 149 प्लस का 58 इंटू 8 अपॉन 2 माइनस, यही लग रहा है। 4 8 4 32 कहती 5 23 62 माइनस करो 0 7 2 लास्ट वाला ये। एम एम होता है तुम्हारा 13 2 17 और 6, 15 है ना ये। 2 प्लस 15 माइनस का 11 और माइनस का 13 हो जाएगा फिर। नहीं नहीं नहीं, 6 माइनस का 11। अच्छा, तो प्लस का 15 यानी 21, यानी यू से स्टार्ट होगा। ठीक है, यू के बाद आई है, तो हमको तीसरा लेटर जी क्या होता है? 7। बी होता है तुम्हारा 2, डब्ल्यू होता है 23 और आर होता है 18। तो माइनस का 5 माइनस का 18 माइनस 5 इज 13, यानी यू आई एम। 6% सिटिंग, इसको भी बाद में करेंगे। और सम हीट्स आर फायर, कुछ हीट जो है वो फायर है। नो फायर इज रेड, कोई भी फायर रेड नहीं है। सम हीट्स आर रेड, कुछ हीट नहीं नहीं, कुछ हीट रेड है। नो फायर इज रेड, सम हीट्स आर रेड। ठीक। ऑल हीट्स आर रेड गलत, सम हीट्स आर नॉट रेड। हाँ ये भी सही है, बिकॉज अगर सारे सेकेंड फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट 5 इंटू 6, नीचे देखो यार, होगा तो 5 का मल्टीपल, ये तो तीसरा चौथा तो एलिमिनेट हो ही गया है। अब अगर 1/5 इंटू 30/11 करो, 6 11/30 इंटू 15/8 करो, 11/16 होगा तो ये यही। ठीक है, अब मुझे ये देखना है 1 11 8 7 और 13। वाइल्ड गैस लगाएंगे यार, अभी समझ नहीं आ रहा मुझे इसमें क्या ही सीन चलेगा। मैं 23/25 के साथ रिस्क लूँगी और इसको मार्क करेगा रखते हैं। मिशेल स्टार्टेड ड्राइविंग फ्रॉम अ हॉस्टल एंड ड्राइव्स 13 किलोमीटर साउथ ईस्ट। तो नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, तो साउथ ईस्ट 13 किलोमीटर साउथ ईस्ट, यानी ये बंदा यहाँ पे है, तेरा चला। शी देन ड्राइव्स 8 किलोमीटर ईस्ट, अब वो 8 किलोमीटर ईस्ट गया। देन टेक अ लेफ्ट टर्न, अब वो लेफ्ट टर्न लेता है एंड ड्राइव्स 12 किलोमीटर, और ये कहीं 12 किलोमीटर पे रुका। And stops. How far in a horizontal line which direction is she is from the hostel? Hostel से कितने दूर है यो? What the hell is this? एक सेकेंड।
मिशेल स्टार्ट ड्राइविंग फ्रॉम अ हॉस्टल एंड ड्राइव्स 13 किलोमीटर, अपने हॉस्टल से 13 किलोमीटर साउथ ईस्ट गई। तो अगर उसका हॉस्टल ये है तो इधर से वो साउथ ईस्ट यहाँ जाएगी ना, 13 किलोमीटर। शी देन ड्राइव्स 8 किलोमीटर, अब इधर पे है तो अच्छा 8 किलोमीटर उसके अपने खुद के ईस्ट, अगर ये उसका साउथ ईस्ट है तो 8 किलोमीटर, तो यहाँ से अगर ध्यान से देखो ईस्ट जा रही है ना, तो नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट इधर जाएगी 8। एंड देन शी ड्राइव्स 12 किलोमीटर एंड स्टॉप्स देयर, और अब वो 12 किलोमीटर ड्राइव कर, 8 किलोमीटर चलने के बाद वो अपना लेफ्ट लेती है और रुक जाती है। तो क्या कह रहा है कि हॉस्टल से कितनी दूर है भाई, पता नहीं क्या ही है ये भाई साहब, इसको आना करेंगे। नो स्टूडेंट इज़ अ टीचर, कोई भी स्टूडेंट टीचर नहीं है। सम टीचर्स आर प्रिंसिपल्स, कुछ टीचर्स प्रिंसिपल्स हैं। सम एग्जीक्यूटिव्स आर प्रिंसिपल्स, कुछ एग्जीक्यूटिव जो हैं वो प्रिंसिपल हैं। ऑल चिल्ड्रन आर स्टूडेंट्स, सभी चिल्ड्रन क्या हैं, स्टूडेंट्स हैं। और नो टीचर स्टूडेंट, तो नो टीचर इज अ चिल्ड्रन, नो, अगर कोई भी टीचर स्टूडेंट नहीं है तो पहला तो सही है। सम स्टूडेंट्स आर एग्जीक्यूटिव्स, पहला ही सही है सर। नेक्स्ट, इफ ब्लिंक इज इतना, तो लाइट का बताना है। तो लाइट क्या हो जाएगा फिर, एल का कोड क्या होगा, एल का कोड इज 2, आई का कोड इज 9, तो एक ही है ऑप्शन 2, 9 नहीं, दो ऑप्शंस हैं। और जी का कोड क्या हो जाएगा, जी का कोड है तुम्हारा 5। नेक्स्ट, ये कह रहा है कि a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 4 एंड सो ऑन। z का होगा 52/26 प्लस का r होता है तुम्हारा 36 इंटू सी 3 to 6 माइनस का 24, तो ये तो 2 हो जाएगा। 216 प्लस 2 इज 218 माइनस का 24, 194। 7 नेक्स्ट, इलस्ट्रेशन बताना है हमको, स्टेप 2 का प्रोसेस बताना है। तो कैसे क्या हो रहा है ये देखना पड़ेगा। स्टेप 1 इसका ये है, आई थिंक डिजिट्स ऐड किए गए हैं ना, हाँ 7 4, मतलब तुम्हारे पास 8 5 2, पहले स्टेप में तो मुझे लग रहा है डिजिट्स ऐड करे गए हैं, 9 6 3 7 4 1 1 5 9 और 3 6 5, तो 8 5 13 to 15, 9 6 15 3 18, 7 4 1 12, 9 1 10 5 15, 5 3 8 6 14। दूसरे में स्क्वायर किया है तो यानी 225, 324, 144, 225 और 196। पहला 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 गलत, दूसरा गलत, तीसरा गलत, चौथा सही है। इसको करते हैं। चार बंदे अ सिटिंग, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि 4 पर्सन सिटिंग पी एंड एस, पी 1 2 3 4, इसके बीच में एस है। क्यू इज थर्ड टू द राइट ऑफ एस, एस के थर्ड राइट में क्यू है, एस का थर्ड राइट जो होगा वो इस साइड होगा, क्यू यहाँ पे है। 3 4 5 6 7 8 9, तो ऐसे ही हो गए। हमें बताना क्या था वैसे, क्वेश्चन क्या था, हाउ मेनी पर्सन डब्ल्यू के राइट में क्या है। टी सेट्स एडजेसेंट टू आर एंड एस, तो आर और एस की, अब या तो यार टी इधर होगा तो आर ये होगा, या फिर टी इधर होगा तो आर ये होगा। ओके, वी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, आर के इमीडिएट लेफ्ट पे वी है, तो यानी ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमको डब्ल्यू की तो पोजीशनिंग फिर भी नहीं पता चल रही है, तो पहला स्टेटमेंट से तो कुछ डब्ल्यू का कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तो छोड़ते हैं। दूसरा स्टेटमेंट लिखते हैं, यू इज 4 टू द राइट ऑफ एस, एस है 1 2, एस का फोर्थ राइट, यानी एस ये 1 2 3 4, यू यहाँ पे है। which is an immediate, u is a fourth right of s, s which is an immediate neighbor of t, s immediate t या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। 2 पर्सन सेट, x और t के बीच में दो बंदे हैं, तो अगर t यहाँ पे है तो x ये होगा, अगर t यहाँ पे है
तो नहीं, तो इसका मतलब टी यहीं पे होगा. नाइदर यू नॉर एक्स सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द रो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. भाई ये ऐसे पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल. नेक्स्ट. हाउ इज के रिलेटेड टू डी? के डी से कैसे? ए इज डीज वाइफ सिस्टर. डी की कोई पत्नी होगी, उसकी सिस्टर है ए. एस इज द मदर ऑफ ए, इनकी मम्मी है एस. के इज द स्पाउस ऑफ एस, तो के उसका हस्बैंड होगा. हाउ इज के रिलेटेड टू डी? के डी से कैसे, तो पता चल जाएगा कि फादर इन लॉ. पहला स्टेटमेंट सफिशिएंट है. दूसरा देखते हैं. के इज द मदर ऑफ पी. के जो है वो पी की मम्मी है. एन इज द सिस्टर ऑफ डी. एन जो है वो डी की सिस्टर है. एन डी की सिस्टर है. बी इज मैरिड टू डी. एन डी की सिस्टर है. बी इज मैरिड टू डी. कोई सेंस नहीं बन रहा है इसमें, तो सिर्फ पहला सफिशिएंट है और दूसरा नहीं. क्योंकि यार इसमें कहाँ गया 19 नंबर था ना ये, क्योंकि इसमें के इज द मदर ऑफ पी और एन इज अ सिस्टर ऑफ बी इज मैरिड टू डी. एन इज अ सिस्टर ऑफ डी. एन डी की सिस्टर है एन बी इज मैरिड टू डी. उससे कुछ सेंस नहीं बन रहा है. 23rd नंबर है. 6 persons are sitting in a circular table facing outward. ठीक, आउटवर्ड है यानी ये तुम्हारा 6 नहीं हुआ, ये 8 हो गया. मतलब ये तुम्हारा राइट होगा और ये लेफ्ट होगा. सोनी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ. अनीशा के सेकंड राइट पे सोनी बैठती है. रवि सिट्स एग्जैक्टली ऑपोजिट टू परी. रवि परी के एग्जैक्टली ऑपोजिट है. और मुस्कान इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ. रवि सिट्स एग्जैक्टली ऑपोजिट टू परी. तो मुझे लगता है कि रवि या तो ये होगा, परी ये होगी. ठीक. फिर कह रहा है कि मुस्कान सिट सेकंड टू द राइट ऑफ नीता. अगर नीता ये है तो मुस्कान ये होगी. परी इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ नीता, तो सही है. ठीक है. क्या बताना है तुमको? रवि इज कौन सा सही है? ट्रू बताना है ना. रवि इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ मुस्कान. मुस्कान कहाँ गई? मुस्कान के इमीडिएट राइट पे रवि गलत. 2 persons सिटिंग परी एंड मुस्कान. परी और मुस्कान के बीच में 2 तो नहीं है. सोनी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ रवि. रवि की इमीडिएट नेबर. नीता इज सिटिंग एग्जैक्टली ऑपोजिट टू अनीशा. नीता अनीशा के लास्ट वाला सही है. सेव. नेक्स्ट 26 नंबर. भाई ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है. अब एक काम करते हैं, मैथ्स में आते हैं फिर देखते हैं. ठीक है, इसको बाद में करते हैं. राइट सिलेंडर से टोटल सरफेस एरिया इतना, यानी 2 पाई आर आर प्लस एच. इसकी वैल्यू गिवन है 1232. तो आर की एच की वैल्यू कितनी गिवन है? 21. और ये कितना होता है? 2 इंटू 22/7. 22 6 नहीं, पहले तो 11 2 जा 11 1 जा 11 121 और 2. ठीक. 22 5 6 और 28. तो आर ब्रैकेट में आर प्लस 21 इज इक्वल टू 28 इंटू 7. तो अगर ध्यान से देखो तो इसको 7 रख लो. ठीक. तो आर की वैल्यू 7 आ जाएगी. नेक्स्ट, इसको बाद में करेंगे लंबा सेंटेंस. से 3 टाइम्स सेक्स स्क्वायर 45 कितना होता है? 2 माइनस का 1/3 प्लस का 2 अपॉन √3 इंटू 1/√3 प्लस का कॉसेक स्क्वायर 30 होता है तुम्हारा 4 माइनस का 1. ये तो कैंसिल हो जाएगा. 3 2 6 माइनस 1 5. ये कैंसिल. तो 5 + 2 + 3 5 2 8 3 11. बाद में करते हैं इसको. क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड एरिया बताना है. तो हमारे पास ये गिवन है 4,2 12,5 9,1 और 1,-1. अब मैं हमेशा से ट्राइंगल में डिवाइड करती हूँ, तो इसका एरिया 1/2 ब्रैकेट 4 1 + 1 माइनस का 9 -1 -2 प्लस नहीं, प्लस का होगा ना, प्लस का 9 प्लस का 1 2 - 1 यानी 1
तो 1/2, 4 2 8 प्लस 9 इंटू -3 प्लस का 1, तो ये माइनस का 12 हो जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, 12 -9 इज़ 3, तो -3 यानी 3/2। ये क्या बात है, कुछ तो मैं गड़बड़ कर रही हूँ, या तो फिर इसका अगर 3/2 है। इसका देखते हैं, इसका नहीं नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ किया है मैंने, कुछ तो गड़बड़ किया है। इसको बाद में करते हैं, छोड़ो, इसको भी बाद में करेंगे। देर आर 2 बॉक्सेस K एंड L। K कंटेन्स 2 रेड पेन्स एंड 3 K में 2 रेड है, 3 ब्लू है। L में 4 रेड है और 2 ब्लू है। इफ वन बॉक्स इज सिलेक्टेड द रैंडम द पेन इज ड्रॉन फ्रॉम इट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन चूजन टू बी रेड कलर। प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि पेन जो हम चूज करेंगे वो रेड कलर का होगा। बाद में करते हैं इसको भी, पहले तो काइंड ऑफ एक्सॉस्टेड। शॉपकीपर मार्क्स एन आइटम 100 से 132, ही देन अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ कॉस्ट प्राइस, अच्छा मतलब 100/132 इज इक्वल टू डिस्काउंट 30% दे रहा है ना, तो 30% डिस्काउंट यानी 70/100 प्लस एक्स। पहले तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लो तुम। तो कैरी वन, and allows a discount of 30%. अगर एस पी गिवन है तुम्हारा 508.2, तो एम पी कितना हो जाएगा 508.2/70 इंटू 100। 7 7 से 49, 7 2 से 14, 726, 726/132 इंटू 100। यही तुम्हारा आंसर भी है। इस तो 2 2 3 जा 363 and 260, 2 6 are 6, 1 2 1 and 6 6 22, 11 2 जा 550। ऐसे भी कर सकते थे तुम, 11 का मल्टीपल। रेशियो ऑफ 3 नंबर्स m and p is 1/2, 2/3 and 3/4। तो 12 है, तो अगर 12 है तो ये 6 हो जाएगा, 3 8 हो जाएगा एंड 3 3 9 हो गया। ठीक, 6 8 9। बाई विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो बन जाए 12 10 और 9। ये तो सेम ही है। अगर पहला देखो 6 को 25% बढ़ा दो, कुछ गड़बड़ है। इसको बाद में करते हैं, छोड़ो। द एवरेज ऑफ नंबर्स तो 24 30 36 42, 6 4 10 2 12, 3 3 6 3 9 4 33। P can do 33 whole 1/3% of the work in 24 minutes। तो 24 9 मतलब
इंटू 3 ये 72 करता है, और Q काम करेगा ट्वाइस द वर्क इन 2 आवर्स, यानी 2 घंटे में, मतलब 60, ट्वाइस द वर्क यानी 60 लेता है। ये तुम्हारा 72 है। RS, तो पहले तो RS इसका आ जाएगा तुम्हारा 12 इंटू 5, या फिर एक काम कहने को तो ये हो जाएगा 12 इंटू 5 इंटू 6, 12 5 जैसे 360, यानी 5 और 6। फिर कह रहा है कि RS मोर देन Q की एफिशिएंसी 3 है, तो 1/3, तो ये 8 हो जाएगी, R की 8 हो गई। हाउ मच PQR विल टेक इन 38%, तो मतलब 8 + 6 14 + 5 19, 38% अपॉन 12 इंटू 5 इंटू 6 यानी 360, 12 5 6 360 इंटू 38/100, 7.2। बेस रेडियस इतना है, वॉल्यूम इतना है, तो यानी 16/81 इज इक्वल टू 4/9 इंटू H1/H2, 4 4 ज़ा 9 ज़ा 4:9। 3 positive numbers, A 30% of A, 30A is equal to 35B, and value of C/2 is equal to total value of A plus B। पहले तो A/B की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 7/6, तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ 13 यानी 26। हमको बताना है क्या है, इफ़ C की वैल्यू मतलब 26 की वैल्यू अगर 520 है तो 1 की वैल्यू 20 हो जाएगी, तो B कितना हो जाएगा, B हमारा 6120। Still water speed of 50% in the still water speed of boat is 50% more than that of B। अगर B का तुम्हारा 100 है तो इसका 250 है, सॉरी 150, and 9 times the speed of the current। 25 जा 23 जा, क्या कर रही हो, 552 जा 53 जा, अगर ये x है, एंड इट्स 9 टाइम्स द स्पीड ऑफ द करंट, तो करंट की स्पीड की 9 टाइम्स है। अच्छा, स्पीड ऑफ द बोट यानी ये 3x इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ y, तो y इज इक्वल टू x/3। ठीक, what is the ratio of the downstream covered by A in 6 hours, distance covered by A in 6 hours, यानी downstream यानी 3x plus x/3 into 6 hours to the distance covered by upstream यानी 3x minus x/3 in 9 hours। So 3 3s are 9 plus 1 10, 3 3 9 minus 1 8, तो 2 5s are 2 4s are 2s are 3s are 5/6। यार 5 आ रहा है, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं कुछ तो कैलकुलेशन करी होगी गड़बड़, तो यही जाएंगे 5/3। लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड इंटरसेक्टिंग, मान लेते हैं ये कोई सर्कल है और ये कोई कॉर्ड है, द रेडियस ऑफ द सर्कल आर दिस, ये 5 है, ये 6 है, और ये मान लेते हैं 4 है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, तो ये कितना हो जाएगा, 36 माइनस 16, यानी देखा जाए तो 3 एक ही में आ रहा है, 3 + 2√5। फिर इसको बाद में करते हैं। मीडियन तुम्हारा 168 है, 210, 248, 324, 5p + 8 यानी 5p + 18 + 6p माइनस का 34 इज इक्वल टू 168 इंटू 2, तो 11p और 18 माइनस करो 6, एंड दिस इज 3 - 1 2 से 116 इज इक्वल टू 8 to the 16,
एक मिनट, मतलब ये कह रहा है ना 5p प्लस 18 प्लस 6p माइनस का 34 इज इक्वल टू 168, मीडियन है ना, इंटू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। 8 टू 16, 6 टू 16 13, 336। तो 11p और 30 इसमें माइनस करो अगर, तो 16, तो यानी 16 प्लस हो जाएगा, 6 6 12, 3 1 4 1 5 एंड 3। तो p की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 3 2। बहुत ज़्यादा, मतलब मैं क्या ही बोल रहा हूँ, मोड बताना है ना इसमें। तो यार देखो, 8 1 2 3 4 बार आया है, 8 4 बार आया है, 12 देखो तो 1 2 3 4, ठीक है, 10 1 2, 16 देखो अगर, तो एक, एक सेकेंड, 8 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 बार आया है, सॉरी, ये 8 5 बार आया है। When a perpendicular distance between two lines is same, then the lines are, अगर perpendicular distance दो लाइन के बीच में सेम है, perpendicular distance, तो लाइन पैरेलल होंगी। if two two successive years of the compound interest are इतना principal, in 2 successive years of compound interest, the interest earned are 4500, and this find the principal in 2 successive years, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट इतना है, तो हमको प्रिंसिपल बताना है ना। ध्यान से देखो तो 9 का मल्टीपल एक ही लग रहा है, तो मैं इसी के साथ जाऊंगी। क्वेश्चन में 9 का मल्टीपल देख लूँ। फाइंड द राइट स्क्वायर पिरामिड विद बेस 16 मेल्टेड इनटू क्यूब। तो पहले तो वॉल्यूम निकाल लो, 1/3 बेस एरिया विद बेस एट 16, स्क्वायर है ना, तो 16 का स्क्वायर इंटू 6 इज इक्वल टू a क्यूब। 3 2 जा तो 16, यानी 16 का स्क्वायर इंटू 2, 16 2 32 इंटू 16। तो पहले बात तो ये ऐसे आ जाएगा ना, 2 की पावर 4 का स्क्वायर इंटू 2, 2 की पावर 8, यानी 2 की पावर 9, तो यानी 8। The shopkeeper marked in price of some 60% above, sell 3/4 quantity at 10% discount and remaining at 15% discount। मतलब अगर CP तुम्हारा 100 रुपये का है, तो मार्केट प्राइस तुम्हारा 60% 160 रुपीज़ का है, वो 3/4 क्वांटिटी, एक काम करो, मान लो 400 रुपये है, तो 400 इंटू 160 यानी 640 हो जाएगा। अब कह रहा है इन 400 में वो 3/4 ऑफ द क्वांटिटी, यानी 3/4 यानी 300, बचेगा 100, उसको बेचता है। अगर CPA है तो डिस्काउंट तुम्हारा 10% का है, और इसका डिस्काउंट तुम्हारा 15% का है। मार्केट प्राइस तो यार फिर सेम ही रहेगा, और 300 में अगर होगा तो इसका MP कितना हो जाएगा, 480 और 160। तो तुमको बताना क्या है, टोटल प्रॉफिट। तो इसमें सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 48 9 कैरी 7, 8 9 72 कैरी 7, 432, ठीक है। और इसमें कितना हो जाएगा, 160 इंटू 85 500, 16 5 से 80, 136, ठीक। अब 136 करो, 6 2 8 6 568, तो 568 में 400 घटाओ तो 168, 168 अपॉन 400 इंटू 100 यानी 42। 7 नेक्स्ट, द मीन ऑफ 10 कोफिशिएंट इज 18%, तो वेरिएंस मीन ऑफ कोफिशिएंट 18% है ना, तो 18 अपॉन 100, आई थिंक मैं अभी बाद में करती हूँ उसको। 143 का स्क्वायर, तो अगर मैं ऐसे रख लूँ, मतलब ये ऐसे है कि a का स्क्वायर प्लस a प्लस 1, 2a प्लस 1, तो यानी a प्लस 1 का, यानी a प्लस 1 का स्क्वायर है,
तो ए तुम्हारा 143 प्लस 1 यानी 144 आएगा ना। नेक्स्ट, अरे बाप रे, summer's age is 4 years, summer's age 4 years ago is 3 more than Sujit's age 2 years hence, यानी s minus 4 is 3 times। समर को अगर मैं x ले लूँ और सुजित को y ले लूँ, y plus 2, तो x minus 4 is equal to 3y plus 6, तो x minus 3y is equal to 10। if निशांत is 7 years younger than समर, निशांत को अगर मैं n ले लूँ और वो समर से यानी x minus 7 and the sum of present सुजीत यानी y plus n is 50, तो यहाँ से n इज इक्वल टू 50 माइनस वाई, तो इन दो को इक्वेट करो तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 50 माइनस वाई, तो अगेन x प्लस वाई इज इक्वल टू 57 और x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। मैंने फिर से कुछ गड़बड़ किया है क्या? अगर मैं ऑप्शन से देखूं और इसको सेटिस्फाई करना चाहूँ तो अगर 24 रखूँगी, यानी 24 हो नहीं सकता, अगर 27 10 ना 31 माइनस 10 21, हाँ इकलौता यही है जो सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसके साथ ही जाएंगे। नो सोल्यूशन ही 3/4 इज इक्वल टू k/5, 15/4, $3.75। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ इतना यानी √5 प्लस 2 माइनस का √5 माइनस 2, तो ये हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया एंड 2 प्लस 2 4 प्लस √5। नेक्स्ट, बहुत सारे छोड़े हैं ना मैथ्स में, भी करते हैं। ये कहता है कि हमको बताना क्या है, पी ए नॉट्स फेवर ऑफ ऑड्स, पी नॉट्स इन फेवर, तो इसको निकालने के लिए पहले तो पी ए गिवन है तुमको, क्या हो गया यार फिर अटक रही है ये स्क्रीन, सॉरी। तो पी ए गिवन है तुमको 1/2 और पी बी गिवन है तुमको 1/13। सबसे पहले तो पी ए डैश कितना हो जाएगा, पी ए डैश तुम्हारा हो जाएगा 1/2 और पी बी डैश कितना हो जाएगा तुम्हारा 12/13। ऑड्स इन फेवर ऑफ, पहले तो ए यूनियन बी है ना, ये एक सेकेंड, मतलब पहले तो ये निकाल लो तुम, पी ए इंटरसेक्शन बी, तो ये तुम्हारा 1/2 इंटू 1/13 यानी 1/26, ठीक है। फिर इसका 1 माइनस करो तो यह आ जाएगा 25/26, तो ऑड्स इन फेवर निकालना है ना तुमको, तो मतलब 1/26 अपॉन 25, एक मिनट, कुछ गड़बड़ कर रही हूँ क्या? अरे यार शिट, ये गिवन है तुमको, पहले तो ये निकालना पड़ेगा ना, पी ए इंटरसेक्शन बी, मैंने इसको कुछ ही अज्यूम कर रही हूँ, तो यानी 1/2 प्लस 1/13 माइनस का 1/26, तो यहाँ से 26 एलसीएम आ जाएगा, तो 13 प्लस 2 माइनस 1, 13 प्लस 15 माइनस 1 इज 15, 14/26, ठीक, तो यानी 7/13। तो अब ये हो गया, तो 7/13 है, तो इसका तुम्हारा पी ए, इसका कॉम्प्लीमेंट कितना होगा 1/7/13 यानी 6/13, बस अब निकाल लो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 7/13 अपॉन 6/13, तो 7/6। फर्जी की सिली मिस्टेक कर रहे हैं इसमें, आप देख रहे हो कुछ था नहीं इसमें,
ये कह रहा है कि a cone of radius 10.5 centimeter is melted into hollow cylinder for uniform thickness. If the height and the inner radius of the cylinder are इतना and the difference between the height and the अच्छा यूनिफॉर्म थिकनेस, पहले तो वॉल्यूम कोन का कितना हो जाएगा 1/3 पाई r² यानी 10.5 का स्क्वायर। हाइट कितनी है, हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट तो हमें पता ही नहीं है, तो अगर मैं इसको h मान लूँ कुछ ये कौन है। और दूसरा क्या है तुम्हारा, सिलेंडर की बात करो, हॉलो सिलेंडर ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस यानी r - r की वैल्यू गिवन है तुम्हें 7। तो 1 बाय मतलब ये हो जाता है पाई r - r का स्क्वायर। हॉलो सिलेंडर की बात करोगे ना तो इनर रेडियस ऑफ द 10 6, हाइट तुम्हारा 10 है यानी पाई r²। स्मॉल आर की वैल्यू तुम्हारी अगर 10.5, नहीं हाइट तुम्हारा कितना है 10, स्मॉल आर तुम्हारा अगर 6 है तो वो 13 होगा, यानी 13 का स्क्वायर माइनस का 6 का स्क्वायर तो 10.5। 169 माइनस 36 यानी पाई 133 इंटू 10.5। बस अब दोनों को बराबर करो, 1/3 पाई 10.5 का स्क्वायर इंटू हाइट इज इक्वल टू पाई 10.5 इंटू 133। एक तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हुआ, ये 133 है, ये तुम्हारा 21 हो, सॉरी 35 हो गया। 7 5 जा 7 1 जा 7 7 9 जा, तो यानी एच की वैल्यू आ गई 38। हाइट ऑफ द सिलेंडर यानी सिलेंडर की हाइट माइनस यानी 10.5 माइनस मतलब 38, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 27.5, सॉरी 27.5। तेरी यादों में लिखे तो A recipe requires 3 types of flours: wheat, rice, barley with protein contents 10 12, मतलब wheat है barley with 10%, 12 और 15। These flours 4 7 D फाइनल मिक्सचर तुम्हारा 13 है और 11 प्लस डी, यानी ये तुम्हारा 40 प्लस 84 प्लस 15 डी इज इक्वल टू 143 प्लस 13 डी। तो ये तुम्हारा 40 प्लस करो तो 124 प्लस 15 डी इज इक्वल टू 143 प्लस 13 डी। तो 2 डी इज इक्वल टू 124 माइनस करो तो 9 आएगा एंड 1, तो डी तुम्हारा कितना आ जाएगा 9.5। यार इसमें मैंने कुछ तो सिली करी है पक्का। ए बी सी और डी अगर ये ऐसे मान लो 4,2 है, अभी मैं एक काम करती हूँ, इसको 12,5 और 9,1 इसका निकालते हैं। तो 4 ब्रैकेट में 5 - 1 4 प्लस का 12 ब्रैकेट में 9 माइनस 9 प्लस का 12 यानी 1 यानी माइनस का 1 प्लस का फिर 4 हो गया 12 हो गया 9 और 2 - 5 इज माइनस का 3, तो 16 माइनस 12 माइनस का 27, तो 16 माइनस 12 तो यार 16 माइनस 12 तो 4 होता है, 27 माइनस करो तो 23 यानी 23/2 तो ऐसे ही आ गया, इसका 23/2 हो गया। अब इसमें क्या ऐड किया है 1, -1, ठीक है। अब इसको देखते हैं, उसको बोलते हैं यानी 4 1 2 फिर प्लस का 9 -1 -2 यानी -2 फिर प्लस का 1 और 2 - 1 इज 1, तो यानी 4 2 8 -9 + 1। तो यार की क्या बात हुई, तो कट रहा है पूरा।
4, 1 plus 1 is 2, then 9, -1 -2, एक सेकेंड, -1 -2 यानी ये -3 हो जाएगा, और फिर 1 यानी 4 2 8 -27 प्लस का 1, 8 + 1 9 माइनस का 18/2। कुछ तो यार गड़बड़ कर रहे हैं हम। यानी 9, तो 9 + 23/2, अगर ये मतलब 23/2 यानी ये 11.5, 11.5 + 9 20.5, इसका 9 है। सही है, मतलब 20.5 के साथ लाके इसको मार्क को रिव्यू रखते हैं यार। पक्का कोई ना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड ऑफ द पोल इज, अगर ये है एंगल ऑफ एलिवेशन, ये कोई पॉइंट 30 है, इफ द हाइट ऑफ द पोल इज x + 5 एंड द डिस्टेंस फ्रॉम टॉप ऑफ द पोल एंड द पॉइंट इज 7x - 15, तो यानी x + 5/7x माइनस का 105 इज इक्वल टू √3। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द फुट ऑफ द, फाइंड द लेंथ फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी ये निकालना है ना तुमको एक तरीके से। तो x + 5 इज इक्वल टू 7√3x माइनस का 1 tan 30, सॉरी 1/√3 होता है, यानी ये हो जाएगा तुम्हारा x√3 + 5√3 में, एक सेकंड, कुछ गड़बड़ है ये तुम्हारा टॉप ऑफ द पोल, ये तुम्हारा गिवन है 7x माइनस का 15, यानी x + 5/7x माइनस का 105 इज इक्वल टू 1/2, यानी 2x + 10 इज इक्वल टू 7x - 105, तो 2x यानी 5x इज इक्वल टू 115, यानी x इज इक्वल टू 23, तो ये तुम्हारा 28 आ गया। 23 - 15 होता है तुम्हारा 8, ये 56 हो गया। तो ये निकालना है तुमको, यानी 56 का स्क्वायर माइनस 28 का स्क्वायर। तो एक काम करो, 28 का स्क्वायर कॉमन ले लो, तो 2 का स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर, तो 28 कॉमन आ गया, 2 2 4, 28√3। सेवन नेक्स्ट, 8th नंबर। बॉक्स, 2 बॉक्सेस K एंड L, K कंटेन्स 2, K के पास कितना है तुम्हारा, K के पास तुम्हारा है 2 रेड पेन्स हैं और 3 ब्लू पेन्स हैं, और L के पास 4 रेड हैं और 2 ब्लू हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि एक बॉक्स को सिलेक्ट करो पहले, और फिर तुमको प्रोबेबिलिटी बताना है कि जो तुमने पेन सिलेक्ट किया है वो। तो सबसे पहले तो 2 है, तो टोटल उसके पास 5 है, इसके पास टोटल कितने 5, तो रेड करने की यानी 2/5 है, और इसको यानी 4/6, ठीक, तो यानी 2/3 हो जाएगा। तो देखो 2/5, अब इसमें, अब इन दोनों में से एक सिलेक्ट करेंगे तो 1/2 प्लस 2/3 सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2, यानी 1/5 प्लस 1/3, तो 8/15। नेक्स्ट, पहले तो इसको कन्वर्ट करा था, तो रेशियो ऑफ एन और p 1/2, 2/3 और 3/4, यानी इसका एलसीएम तो 12 आएगा, तो 6, 8 और 9, ये आ गया, ठीक है। इसको 6, 8 और 9 डन। एंड इसके बाद हमको बताना है कि बिकम्स 12 द और दिस। अगर ऑप्शन चेकिंग करें, पहला यार पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है यार ये तो 9 का 9 ही बन रहा है ना। पहला ऑप्शन में कह रहा है 6 को अगर मैं 1.25 और कितने का है, मतलब अगर 6 पहले ऑप्शन से 1.25
और 8 इंटू 1.2 और 9 इंटू 1.6। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन भी मैच करा रही हूँ तो 1.25 इंटू 6, ये तो तुम्हारा 7.5 होता है, 9.6 होता है, और ये 14.4 हो गया। तो भी नहीं बनेगा, पहला तो नहीं बन रहा है। दूसरा देखते हैं, एम को 60% इंक्रीज़ किया है, यानी 60 इंटू 1.6, मतलब 6 इंटू 1.6, तो ये 9.6 हुआ। और पी को डिक्रीज़ किया है, ये 80 रहेगा। पी को डिक्रीज़ किया है तुमने और 20%, यानी 9 इंटू यानी 7.2। हाँ, ये वाला सही है, ये बन रहा है ना। ये 9 है, सॉरी। 7 नेक्स्ट। टू टेंजेंट्स ए बी एंड ए सी आर ड्रॉन, मतलब ये कुछ है ऐसे और ऐसे, ए बी और सी। एक्सटर्नल पॉइंटिंग सच अ वे टेंजेंट्स इंक्लाइंड ईच अदर 60, फाइंड द मेजर ऑफ ए ओ सी। तुमको बताना है, ये ओ है अगर, तो ए ओ सी ये 60 है, ये 90 होता है, तो ये तुम्हारा पूरा कितना हो जाएगा, 120, यानी ये 60, ये पूरा 120 हो जाएगा ना। तो यानी ये 60 और ये 60, यानी 60 आएगा ए ओ सी। नेक्स्ट, द मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन, 10 ऑब्जर्वेशन है, उसका मीन तुम्हें गिवन है 30, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन तुम्हारा 18% है, तो वेरिएंस बताना है तुमको। तो सबसे पहले तो कोफिशिएंट 18 है, तो वेरिएंस है, मतलब ये हो जाता ना 18 इंटू 30 बटे 100, तो यानी 5.4, 5.4 का स्क्वायर करो तो आखिरी में 6 आना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन में 6 है। इसी के साथ जाकर नेक्स्ट करते हैं। तो ठीक है भाई, ये वाला देखते हैं। इन द रनिंग ट्रैक कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर सेक्शन विद सेमी सर्कल एट द बोथ, रेक्टेंगुलर सेक्शन है, मतलब ये कोई रनिंग ट्रैक होगा विद सेमी सर्कल एट बोथ द एंड्स। अच्छा, बोथ द शॉर्टर साइड, सॉरी, मतलब शॉर्टर साइड यानी ब्रेथ, ये है तुम्हारा। ठीक है, द कंबाइंड एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल इज 40% ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर। अगर ये लेंथ है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ब्रेथ है, तो एल बी इज इक्वल टू, इसका कितना है तुम्हारा, मतलब ये पूरा ये तुम्हारा पाए b/2 का होल स्क्वायर, तो b²/4। ये तुम्हारा कंबाइंड एरिया ऑफ टू 40% ऑफ द रेक्टेंगल विच इज़ 40/100, ये है। तो ठीक है, एक भी कैंसिल हो जाएगा, 12 बचेगा, 2 5 22/7, नहीं पाई को ऐसे ही रखो, तो यानी L/B आ जाएगा तुम्हारा 5π/4। तो क्या बताना है, अप्रॉक्सीमेट रेशियो ऑफ लेंथ अपॉन विड्थ, दिस इज 5π/4। 5π/8 आ रहा है इसमें ऑप्शन में, तो मैं फिर इसी के साथ जाऊंगी 5π/8 के, कुछ गलत किया होगा मैंने। अब ये इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ते हैं। द कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप ऑफ अ मैगजीन, मैगजीन सेट करने की कॉस्ट तुम्हारी गिवन है 2800। कॉस्ट ऑफ मिसलेनियस आइटम इज 80 पैसा पर कॉपी, 2800, 80 पैसा पर कॉपी, एंड प्रिंटिंग इज, देखो मिसलेनियस का तुम्हारा गिवन है 80 पैसा यानी 0.8 रुपीज़, और प्रिंटिंग का गिवन है 1.6 रुपीज़, एंड 200 कॉपीज़ वर प्रिंटेड, 2000 कॉपीज़ प्रिंट की गई थी, तो पहले तो 2000 कर लो, ठीक है। और इसमें मतलब एक तरीके से अगर ये तुम देखो तो 2.4 पूरा आ जाएगा तुम्हारा, 2.4 पर कॉपी, फिर 2.4 पर कॉपी है, तो इनको अगर मैं किससे 2000 से मल्टीप्लाई करूँ तो 4800 रुपीज़ आ गया उसका खर्च ऐसा। तो 2800 इसमें और प्लस कर दो, तो 0 0 16, और 7600 रुपीज़ आ गया उसका। अब क्या कह रहा है, टोटल 25% प्रॉफिट इन द सेल वॉज 25% द प्रॉफिट सेल वॉज रियलाइज, देयर वॉज वन सोर्स एडवर्टाइजिंग, सम ऑफ द मनी ऑब्टेन फ्रॉम द एडवर्टाइजिंग द मैगजीन कितना है। तो पहले तो तुम्हें 7600 रुपीज़ तो ऐसे ही है,
प्रॉफिट यानी तुम्हारा, ये तुम्हारा अगर सेलिंग पॉइंट तो यानी 7600 इज इक्वल टू 7500 बाय एक्स, 25 3 जा 4 यानी 760 इंटू 4/3। ठीक है, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या? एक सेकेंड, ये तुम्हारा 7600 टोटल आ गया था। अब या तो मैं इसमें ऑप्शन से अगर देखूं तो भी यार समझ नहीं आ रहा है। इसमें अगर 25%, 25 6 जा 1900, ठीक है। तो इसमें ये अगर प्लस करूँ 7600, 009615, आई थिंक ये लग रहा है 7x, तो 1000 ही लग रहा है इसमें आंसर। अगर 76 में से माइनस करने पे वही आ रहा है 9500, अगर लगभग 1900, एक सेकेंड गलत कर दिया मैंने, 7600 माइनस ये था तुम्हारा, मतलब ये तुम्हारा 95, तो ये तुम्हारा टोटल 1900 आ रहा था, मैंने 2000 लगाया है। देख रहे हो आप, मतलब कैलकुलेट करके गलत किया है, इसको क्या बोलेंगे हम। शिट, सो हटते हैं। नीड टू रिलैक्स फर्स्ट। तो यार इसमें पी क्यू, पी और पी से सबसे ज़्यादा पी से ही है ना। ग्रेट लीडर्स थ्रू द हिस्ट्री हैव स्टॉप्ड, हैव शेप्ड सोसाइटीज थ्रू विजन, करेज एंड रीसाइलेंस। ओके, तो ग्रेट लीडर्स यानी पी कनेक्टर बन रहा है। देयर लीडरशिप वॉज ऑफन टेस्टेड ड्यूरिंग वॉर्स, रेवोल्यूशन एंड सोशल अपहीवल्स। फिर पी के बाद इनके हिसाब से या तो क्यू है या तो आर है। क्यू है फिगर सच एज, और आर क्या है, डिस्पाइट द डिफरेंस दे शेयर्ड अ कमिटमेंट टू जस्टिस, डिग्निटी। अच्छा, अगर मैं पी के बाद आर रखूँ, फिर क्यू है फिगर सच एज, ट्रांसफर एम्पैथी, फिर क्यू, पी आर है, फिर क्यू है, फिर एस है, देयर लेगेसीज। देखो देखो, इट देयर लेगेसीज, देखो एस से एंड होगा ये भी तय, और पी से स्टार्ट होगा। अब बचा यहाँ पे या तो आर क्यू है या तो क्यू आर है। डिस्पाइट डिफरेंस कॉन्टेक्स्ट दे शेयर्ड अ कमिटमेंट, और आई थिंक पी के बाद क्यू है फिर आर है, तो पी क्यू आर एस। सेवन नेक्स्ट, द एस्ट्रोनॉट देन बिगेन, वन से तो स्टार्ट हो नहीं सकता बिकॉज देन आ गया है, फिर या तो 2 से है या तो 3 से है बिकॉज ऑप्शंस में। द लूनर मॉड्यूल नेम ईगल टच द डाउन सेफली ऑन द मून सर्फेस, ठीक है। 2 के बाद 3 है या तो 1 है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग टुक हिस्टोरिक फर्स्ट स्टेप डिक्लेयरिंग इट अ गाइड लीव फॉर द मैनकाइंड। द एस्ट्रोनॉट्स देन बिगेन टू कलेक्ट लूनर रॉक एंड सॉइल सैंपल्स। और फिर 4, आफ्टर कंप्लीटिंग द मिशन, 4 से एंड होगा, दिस इज ऑल्सो श्योर। तो या तो 3 1 है, तो मेरे ख्याल से 3 1 2 3 1 4। मेरी दिल आफ्टरवर्ड्स तेवर, आफ्टरवर्ड्स से स्टार्ट होगा नहीं, या इसका मतलब ए से होगा नहीं, या तो बी या तो सी, क्योंकि ऑप्शन में डी है नहीं स्टार्टिंग। तो द रिसर्चर फाउंड दैट मोस्ट स्टूडेंट, या फिर रिसर्चर्स इनवाइटेड कॉलेज स्टूडेंट्स टू कम टू रिसर्च लेबोरेटरी वेयर दे चैटेड विद अदर पर्सन दे डिडंट नो। अगर बी से स्टार्ट है, पहले उनको कॉलेज में इनवाइट किया गया, फिर उसके बाद आफ्टरवर्ड्स दे वर आस्क्ड सेपरेटली हाउ मच दे लाइक दिस पर्सन, वेयर दे चैटेड व्हेन दे डिड नॉट नो। फिर बी के बाद अगर ए है, द रिसर्चर फाउंड दैट मोस्ट स्टूडेंट्स सेड दे लाइक द अदर पर्सन बट थॉट द अदर पर्सन लाइक देम लेस। The length of the conversation don't matter, as I think BACD is the perfect match. Save and next. The buffet is arranged dash the garden.
and the guests were requested to have the dinner, लग रहा है, because arranged prohibited, I think, and requested to have the dinner. The thief somehow managed to dash, get over, get off, get out, get on, get off, get over from the managed to escape ना, like ऐसा कुछ sentence है जिसका मतलब बन रहा है कि the thief managed to escape from the police custody. Get over, get off, get out, get on. तो मेरे ख्याल से यार इसका फिर get out ही होना चाहिए, because get over तो something positive sense, get off, get off, get out. यार लग तो यार get off भी रहा है, because get off का मतलब भी ऐसे ही कुछ होता है ना कि या तो get off है या तो get out है. So manage to get out, get out. Get off, get out, इन्हीं दोनों में से डाउट है. get over, get on तो कैंसिल ही हो गया है. मैं इसके साथ जाकर मार्क पर रिव्यू रखती हूँ. The higher education, also called the post secondary education, third level or tertiary education, dash and important. Higher education also is an important have, I think, is an important. Kareem was struggling with a large suitcase, struggling by, struggling of, struggling with a large suitcase. See next. Dopal anger, appellation, ex, क्या 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 क्या, थर्ड वाला तो बोलने को भी नहीं आ रहा है, मेरे ख्याल से थर्ड वाला ही गलत लग रहा है. एक्सैंजिनेट. एक काम करती हूँ, उसको मार्क फॉर रिव्यू रखती हूँ, बाद में देखते हैं इसको. We taste and smell our memories. Sensory memory is पानी की bottle. Sensory memory is for the most part involuntary. Involuntary memories, देखो memories है तो reads तो होगा नहीं, dice नहीं होगा, occur without और simplify without occur. Involuntary memories occur होगा. Occur without a conscious effort when certain cues encountered in everyday life, such as taste and recent triggers, recollections of the past, images produced by memory recalled through a present taste or smell, enable us to remember peoples we have lost, relieve past pleasurable reception moments, arrange, I think moments hoga iska, pleasurable moments, and anticipate the future possibilities. Thus, based on the memories that becomes a comfort food or the perceived appealing scent of a lover is predetermined. The eternity of our emotional memories, to paraphrase Proust, becomes profoundly apparent when the present sensory experience, like eating a certain food, activates them. Taste involves recognition and memory, and numerous ultimate smart, I think, numerous sensorial experiences can become activated once food reaches the mouth. In my case, I did been researching for decades for a cheese that matched what my Chilean mother made every week from naked fresh goat milk. Next है, the police present helped quell the unrest and restore order from the right stricken area. The police presence helped quell the option से करते हैं, justified, provoke, dissuade, confirm. The police presence quell the unrest and restore justified, provoke. अच्छा एंटोनियम बताना. जस्टिफाइड और कंफर्म तो सेम है, तो ये तो नहीं हो सकता, या तो प्रोवोक होगा या तो डिसवेड मतलब किसी को कन्विंस ना कराना. तो मेरे ख्याल से इसका आंसर फिर प्रोवोक ही लग रहा है. सेवन नेक्स्ट करते हैं. कितना लंबा है देखते हैं. ऑप्शन से हो रहा है क्योंकि ऑलिव का ये होता है ना कि ऑप्शन से भी हो जाता है बिना पैसेज पढ़े. What does phrase invidious comparison means? तो पढ़ना ही पड़ेगा. ठीक है, पढ़ते हैं फिर. बहुत ही लंबा है ये. In the bedrock of classic economics, the law of demand is a fundamental tenet. As the price of the good increases, the quantity demanded falls. जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है
डिमांड कम होती है. However, the fascinating counter-intuitive exception exists within the realm of luxury, a concept brilliantly articulated by economist and sociologist Thorstein Veblen in this seminal 1899 work, The Theory of Leisure Class. This phenomena describe Veblen goods, the unique category of products for which demand perversely increases as their price rises. Acha. Okay, operating in the direct defiance of the conventional market logic. At the heart of this paradox lies the concept of conspicuous consumption. Veblen argued that for the affluent leisure class, an act of purchasing and displaying certain goods is not about their intrinsic utility, but about publicly signaling wealth and social status. The value of the Veblen good is inextricably linked to high price, which serve as an overt broadcast of purchasing power. The designer handbag and a limited edition Swiss watch or a high performance sports car are not just functional items, they are powerful symbols of economic success. A $10,000 handbag carries more than $50 one, but its true function is to carry their owner's social standing. Their exorbitant cost serves as a formidable barrier to entry, ensuring that ownership remains exclusive and therefore desirable as marker of elite standing. Their consumption is driven by invidious comparison, the act of using wealth to create visible distinction from those of lower, देखो invisible comparison दिख गया, those of lower social strata देखना पड़ेगा क्या है. Phrase comparing products on quality, judging items objective, market distinction highlights a superiority. I think सबसे बेस्ट यही मैच कर रहा है कि superiority over others, because इसमें using well to give visible distinction from those of lower. Next, what argument does book author make about the relationship between price and the desirability of the higher price discourages consumers from the high price enhance the durability of the reinforcing social price has no influence relation price. इसके लिए थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा लग रहा है क्योंकि देख तो नहीं रहा था. The act of using, consequently, if the price of such were to decrease, it would become more accessible to general population, thereby diminishing its power as a status symbol. The very exclusivity that made it appealing would be lost through the brand dilution, causing the elite consumer to abandon it and in search of the next attainable price. In this way, the high price is not a deterrent but a primary feature that generates demands among the target audience. This is sometimes known as snob effect, where desirability is a direct function of others being unable to afford it. The Veblen good theory reveals the consumer behavior is not always driven by the rational calculations of price versus utility. Instead, it is often deeply influenced by the social psychology, ambition, and primal desire to communicate one's position with the social hierarchy. In the age of curated social media feeds, these public displays of status are more potent than ever. For this unique category of products, the price tag is not simply a cost to be endured, it's a very essence of their allure. What does the argument author make to compare about the relationship between price and the desirability of the luxury goods? High price discourage consumers from purchasing. Low price increase the exclusivity of the luxury products. High prices enhance the desirability of the reinforcing. कौन सा वो नो देखो लास्ट तो नहीं हो सकता. अब या देखो मुझे लग रहा है दूसरा भी नहीं है, तो पहला है या तो तीसरा है. Higher price discourage consumers from purchasing. High prices enhances the desirability of reinforcing the social status. आई थिंक मेरे ख्याल से यही होगा इसका आंसर. सेवन नेक्स्ट करते हैं. What is the grammatical role of the clause which serves as the overt in the broadcast of purchasing power? Which serves an overt broadcast of purchasing power? Adjective clause modifying its high price. Which serve, इसको देखना पड़ेगा. Which serve as a overt.
कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, विच सर्व एज एन ओवर्ट. Serve as an overt purchasing power. कहाँ भाई, मेरे को दिख क्यों नहीं रहा है? Which serve as an overt for the purchasing power. Which serve as an category. Suspicious consumption of the purchasing. Replacing value of the excessively high prices. ये मिल गया. The value of the Veblen good is inextricably linked to its high price, which serve as in links to the high price. देखो high price की बात कर रहा है ये, तो I think मेरे ख्याल से हाई प्राइस को मॉडिफाई कर रहा है. नेक्स्ट, what tone best describes the author's stance on behavior of the affluent consumers engaging in conspicuous consumption? Optimistic or encouraging, confused or admiring, persuasive, disapproving yet insightful. Affluent consumers engaging in conspicuous consumption. देखो, at the heart of this concept of argued एक second, Veblen argued that for the affluent leisure class, the act of purchasing and displaying certain goods is not about the intrinsic utility but publicly social status linked to the high price which serve. मतलब एक तरीके से वो एडमायरिंग पर्सुएसिव तो है नहीं, कह रहा है कि आर्ग्यू तो कर रहा है वो कि इट्स नॉट अबाउट देयर इंट्रेंसिक यूटिलिटी बट अबाउट द पब्लिक सिग्नलिंग. मतलब दिखावा एक तरीके से. कंफ्यूज अनसर्टेन भी नहीं है. ऑप्टिमिस्टिक आई थिंक डिसअप्रूविंग है बट इंसाइटफुल. एक इसमें था एक और, मुझे को देखना दो एक मिनट, क्योंकि इसने बोला था ये तो चलो ठीक है. इसके बाद हाँ सही है. इन्योर इंजो इन्योर मतलब वीकन, हार्डन, सिनोनिम मतलब गिवन वर्ड मीनिंग इन्योर. सेंसिटाइज, इंजर करना, वीकन. देखो इंजर और वीक यार एक ही वर्ड है, तो इसको तो आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो. बचा कौन सा? सेंसिटाइज पे किए से तो हार्डन ही बचा, तो हार्डन के साथ जाओ. एलिमिनेशन से गए. द पर्सन हुज जॉब इज टू बाय एंड सेल प्रोडक्ट्स एट लार्ज अमाउंट. मर्चेंट, वेंडर, पॉडलर और रिटेलर. तो ये काम तो यार मर्चेंट का ही होता है, बिकॉज वेंडर के पास बहुत ज़्यादा तो नहीं होता है. कोल्यूजन का सिनोनियम बताना है. सिनोनियम में कैंटो है, साइनो है. द अल्टीरियर इंटीरियर सिचुएशन और कॉन्वियंस. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यही होगा, बिकॉज मुझे इसका मतलब भी नहीं पता है, तो आई थिंक यही है. हु इज़ बीइंग कंसिडर्ड बाय द प्रेस्टिजियस सिलेक्शन कमिटी फॉर द कोवेटेड रोल. हु इज़ बीइंग यानी हु इज़ बीइंग, whom is na, who is considering the, who is being considered by the, who is considering by whom is prestigious is considering whom for the role of. देखो क्वेश्चन मार्क है ना, तो लास्ट वाला तो कोई सेंस नहीं बना रहा, बिकॉज वो क्वेश्चन मार्क से एंड नहीं हो रहा है, तो लास्ट वाला तो ऐसे ही एलिमिनेट कर दो. हु इज बीइंग कंसिडर्ड, मेरे ख्याल से फिर यही होगा. नेक्स्ट, a compelling story about forgotten hero was written by new author to the literary magazine last year. Active. The hero was written है ना, तो wrote होगा. Next. Temporary police force को क्या बोलते हैं? Navy, Army, Brood pose. तो यार ये इसको पोज ही बोलते हैं, आई थिंक. नॉलेज. द प्रोजेक्ट मैनेजर इन्फॉर्म्ड हिज टीम दैट he was reviewing the final draft of the proposal which needed to be submitted by the end of the day.
ही वॉज रिव्यूइंग यानी आई एम रिव्यूइंग यानी पहला या चौथे में से कोई एक होगा. द फाइनल ड्राफ्ट और द प्रपोजल विच नीड्स टू बी, पहला ही वाला सही है. नेक्स्ट, the scientists will have analyzed all the collected data from the space probe before they publish their groundbreaking research. Will have है ना, तो इसको पैसिव बदलना है. will have पहला तो नहीं होगा. will have been analyzed ही लग रहा है मुझे, थर्ड वाला. Before they publish their groundbreaking, the all collected data will have been analyzed by the scientists. सही लग रहा है. The old woman said to the young boy, "May you achieve all the success." The old woman wish कर रही है ना एक तरीके से, wish that may you achieve, that he achieved, that he might, that I think wish the young boy that he might achieve all the desired, make beloved parents proud. Next, the speaker's argument was neither logical in structure, neither के बाद और, तो सेकंड में गलती है. Due to dense morning fog rolling in from the coast, the ferry captain couldn't hardly see. तो couldn't hardly sense नहीं बन रहा एक साथ. The general ordered his troops to retrench their position. To retrench the containing homo नहीं बताना, मतलब different words. The general ordered his troop to retrench their position behind the river. तो to retrench the camp पहला तो नहीं होगा. Faced with declining profits, the company had to retrench and cut. और the soldiers retrench ना I think second वाला ही सबसे सही है. Next, इसमें बताना है कि MBA से पहले कौन सा आर्टिकल. My sister is pursuing MBA from pursuing an MBA. My sister is pursuing a MBA गलत है. Pursuing the MBA, the MBA तो बहुत ही गलत है. My sister is pursuing an MBA. My sister is pursuing an MBA. An MBA लग रहा है, या my sister is pursuing MBA. An MBA. My sister is pursuing. My sister is, या तो यार कोई भी नहीं लगेगा. My sister is pursuing an MBA. My sister My sister is pursuing an MBA. An MBA लग रहा है, इसको मार्क को रिव्यू रखते हैं. Which among the following uses the adjective with correct degree of comparison? Intelligenter, wow. Consider more intelligent than most. I think second वाला ही सही है. अरे यार फिर से पैराग्राफ कितना लंबा है, छोटा है, चलो पढ़ते हैं. Spiritualists sought ways to communicate with the deceased, मतलब जो मर गए, leading to the invention of the various devices, including early forms of the Ouija board. The modern Ouija board, as we know, it was patented in 1890 by Ija Bond and Charles Kennard, marketing as a tool to communicate the spirits of the movement of placente across a board, marked with letters, numbers, and symbols. Over time, Ouija board transcended its spiritualist root to become the cultural phenomena deeply embedded in popular culture and folklore. The board gained traction during World War I, which, when May sought solace in contacting lost loved ones, its popularity surged further in the mid-20th century, with portrayals in books, movies, and television shows, often depicting supernatural or rare encounters, despite skepticism from the skeptics and psychologists attributing its working to the Edimeter effect, where subtle movements are unconsciously made by the participants. The Ouija board continues to intrigue and captivate. यार नरेटिव तो नहीं है, डिस्क्रिप्टिव आर्गुमेंटेटिव भी नहीं है. आई थिंक डिस्क्रिप्टिव है, थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन दिया गया है. सोलेस मतलब एकांत होता है, तो साइनो बताना है. सोलेस, कॉन्सोलेशन, कॉन्ट्रैक्शंस, एग्नी और सफरिंग एक ही बात है. मतलब एग्रिंग और सफरिंग दोनों में ही पेन आ रहा है, तो एग्नी और सफरिंग तो नहीं होगा. कॉन्सोलेशन या कॉन्ट्रैक्शन, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इसका आंसर कॉन्सोलेशन होगा. सोलेस का मतलब तो बहुत ही ज़्यादा एकांत, काम, मेरे ख्याल से ये होगा, मुझे यही लग रहा है. नेक्स्ट,
The modern Ouija board gained significant popularity during 1819 है ना. Traction during World War One. Its popularity surged for the mid portrayals in book. Significant popularity during which year? The Ouija board gained significant popularity. Ouija board जो था, नो पेटेंट हुआ था तो 1890s में, बट आई थिंक इन द लेट 19th सेंचुरी लग रहा है, मिड. मेरे ख्याल से यही हुआ ये. नेक्स्ट, what was the primary person first to communicate with spirits of deceased? यही था पहला वाला. The chief announced we have finally. Chief announced that we तो होगा नहीं. They had finally completed the structural integrity test. The entire blame for the crime cannot be laid at the door. Cannot be laid at the doors of the state. सही लग रहा है. Made my flesh crawl. Made my flesh crawl. Something that makes you feel disgusting. Something that hampers your emotional well-being. Something that hampers your physical well-being. दूसरा तीसरा सिमिलर साउंड ना गलत हो जाएगा. समथिंग आई थिंक पहला ही वाला ही है. Save next. The ad promised miracles and the quote said the proof of the pudding is in the eating. Beauty is subjective. First impressions are always proof. Results are only reliable if only reliable test of quality. एक सेकेंड, रुको फिर से पढ़ने दो. कह रहा है कि the ad promised miracles. The quote said the proof of the pudding is in the सही है. mesmerizing का मतलब ये होता है बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से एस्टॉनिश्ड टाइप का हो जाना. तो स्पेल एंटोनी बताना है ना, तो स्पेल बाइंडिंग कंफ्यूज है. टीडीएस बचा. टीडीएस मतलब बहुत थका हुआ. पैराग्राफ है, आई थिंक ये लास्ट पैराग्राफ होगा ना. 41. हाँ, लास्ट पैराग्राफ है. पढ़ते हैं इसको. पहले देखते हैं क्यूरेटेड आइडेंटिटी. क्या ये ऑप्शन से हो पाएगा? क्यूरेटेड आइडेंटिटी, द स्पॉन्टेनियस शेयरिंग ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस ऑनलाइन, डेलिब्रेट. नहीं, पढ़ना ही पड़ेगा. कितना लंबा है भाई. इन टूडेज हाइपर कनेक्टेड एरिया, what social media has become far more means of communication. It is involved into a powerful medium of shaping and transform and performing identity. Platforms such as Instagram, TikTok, and X encourage individuals to curated digital. ये लिखा है ना, encourage individuals to curate digital version of themselves. यानी spontaneous sharing of personal experience online, deliberate portrayal of selected aspects of one's life. एक बार और पढ़ना पड़ेगा. Often blending authenticity with performance. People post pictures, stories, and opinions not merely to share experience but to craft narratives about who they are, wish to, or appear to be. This ability of self-present refers both empowerment and pressure, as users constantly negotiate between genuine expression and social expectations. The phenomena curated identity reflects the selective nature of self-representation. सेलेक्टिव नेचर ऑफ, तो एक ध्यान से देखो. शेयरिंग पर्सन ऑनलाइन, डेलिब्रेट, आई थिंक यही है सबसे बेस्ट. नेक्स्ट, मतलब कॉन्शियसली का नियरेस्ट मीनिंग बताना है तुमको. तो ये तो आगे पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं, तो पता ही होता है कि बहुत ही कॉन्शियस होके काम करना है, यानी डेलिबरेटली. नेक्स्ट, टोन बताना, इसके लिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. When the other's internal curated image like this concepts, however, social media is not entirely detrimental. It has also emerged as a platform for advocacy. मतलब एक तरीके से उसने प्रोस भी बताया, कॉन्स बताया, तो आई थिंक इट्स अ बैलेंस्ड वन. मेरे ख्याल से बैलेंस्ड है, बिकॉज उसने पहले पैराग्राफ में तो उसने वो सब बता दिया कितना गलत है, बट दूसरे में आई थिंक बैलेंस किया उसने. इसको मार्क कर रिव्यू भी रखते हैं. द ट्रू आइडेंटिटी, the true identity the passage suggests exists not only in the validation but in one's
नॉट ओनली इन द वैलिडेशन बट इन वंस, बट आ गया है, नॉट ओनली इन वैलिडेशन बट इन वंस एबिलिटी। देखो जोड़ तो, बट फैन बॉयज का बट आ गया है इसमें। ट्रू आइडेंटिटी, द पास इज नॉट ओनली इन डिजिटल इन वंस, आई थिंक कंपाउंड है बिकॉज एक जुड़ गया है इसमें। करेक्ट स्पेलिंग ऑफ ऑसिलोस्कोप, पहला तो नहीं होगा बिकॉज ऑसिलेशन में ही डबल एल आ जाता है, तो पहला तो नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा ही है, चौथा तो नहीं है। यस, गंगा नदी के बारे में, इट ओरिजिनेट इन सतोपंथ ग्लेशियर ओवर बद्रीनाथ। गंगा ओरिजिनेट इन सतोपंथ ग्लेशियर, सही लग रहा है। इंटरप्लेस, आई थिंक बोथ 1 and 2 करेक्ट। According to QS World University Ranking 2026, which Indian institution ranked highest? तो मैंने, मेरे ख्याल से IIT बॉम्बे का रिसेंट में न्यूज़ में कुछ था, तो यही है। Which elements had the highest ionization energy? तो यार हेलोजन फैमिली से एक ही बंदा है, फक्कल भी यार बोलते हैं उसको, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, तो फ्लोरीन ही रहेगा। नेक्स्ट, when the price of the product increases, when the price of the product increases, the demand, जब प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड फॉल करेगी। हाँ, बट वेबलिन गुड्स, अच्छा ये तो वही वेबलिन गुड्स का है, द डिमांड विल फॉल, पहला सही। द वेबलिन गुड्स आर द एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, हाँ वो अभी तो यही, इसी का तो पैराग्राफ पढ़ा था। विटामिन सी, साइट्रिक एसिड। क्या कह रहा है कि which of the following statement best captures the essence of nutmeg's curse? The parables of the planet in crisis. Historical amount, तो मैं इसमें निट्टो लगाती हूँ, सबसे लंबा स्टेटमेंट पे मार्क करके नेक्स्ट करते हैं। The basis of distinction between the market price and the factor cost, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बीच का डिस्टिंक्शन बताना है। तो या तो अगर मैं निट्टो भी लगाऊं तो या तो दूसरा होगा या तो तीसरा होगा, बिकॉज ऑपोजिट एंड सिमिलर है ये। तो प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, आई थिंक माइनस के साथ में जाऊंगी, उसको मार्क फॉर रिव्यू रखती हूँ। बैथोलिथ, अब इसमें थोड़ा तो निट्टो खेलना पड़ेगा क्योंकि मुझे सिर्फ लैकोलिथ का ही मतलब पता होता है कि कुछ मशरूम वाले होते हैं, मशरूम शेप ही याद है मुझे, तो सेकंड का आई थिंक सी होगा बिकॉज डोम शेप इज मशरूम, तो सेकंड का सी, पर 3 ऑप्शन में है, तो यानी लास्ट ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। 1, 2, 3 और 4, यानी इसका तो सी है। अब फर्स्ट का या तो ए है या तो डी है, तो ऑप्शन से देखो तो मेजॉरिटी में डी है, तो डी सी। अब थर्ड का मैं लगा देती हूँ, तो ए, अगर मैं फोर्थ भी देखूँ तो फोर्थ का मेजॉरिटी में जो जा रहा है वो ए है, तो ए बी, यानी डी सी बी ए। डी सी, एक मिनट रुको रुको, फोर्थ का नहीं 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 नहीं, एक सेकेंड, ये तो पक्का है, ठीक है, थर्ड और फोर्थ देखते हैं। थर्ड में मेजॉरिटी में बी है, बिकॉज थर्ड में डी बी ए बी, तो यानी बी। फोर्थ का फिर ए, डी सी बी ए। कहेंगे ऑप्शन डी सी बी ए, यही है ना, इसको मार्क पर रिव्यू रखते हैं। which of the following statement regarding the chairman of the UPSC is incorrect? He holds the office for the term of 6 years or until he 65, whichever is earlier. I think ये सही है। After retirement he can be reappointed as the chairman for the second term. नहीं, ये गलत है, reappointment होता ही नहीं है कभी UPSC के चेयरमैन का। Turner syndrome occurs due to complete or the partial absence of the X chromosome in females. Turner syndrome females, हाँ सही है। Individuals Turner syndrome usually have 47, नहीं, अगर partial absence है तो 47 कैसे होगा, कम होगा, तो सिर्फ पहला ही सही है।
फेम स्कीम के बारे में बताना है. इट इज़ इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइज. द स्कीम एम्स टू इम्प्रूव द ब्रांडिंग एंड द मार्केटिंग. The scheme aims to branding and the marketing of the products by public sector enterprise. यार ये तो सही है, हैवी इंडस्ट्रीज का ही फेम स्कीम है. ये मतलब वो जो ईवी व्हीकल्स के लिए था, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को करने के लिए मार्केटिंग, आई थिंक पहला ही सही है, बिकॉज ये इसका पर्पस तो यही था कि जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी है उसको थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए था ये. English won the Battle of Plassey through a secretive alliance. Battle was fought between the Mir Jafar and English. मतलब British English won the Battle of Plassey, बिल्कुल सही है. And secretive alliance की था. दूसरा क्या है कि नहीं मीर जाफर नहीं था. मीर जाफर ने तो हेल्प की थी ना, तो पहले गलत सही. एक मिनट, करेक्ट बताना था ना. हाँ. Which was the first India to become the governor, first Indian women to become the governor general of पहली भारत की पहली महिला तो यार सरोजिनी नायडू है. फर्स्ट वुमेन सीएम थी सुचित्रा कृपलानी. विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द रोल ऑफ फाइनेंस टू फ्रेम द फाइनेंशियल पॉलिसीज फॉर ऑल states to recommend the distribution of the taxes between union and states to prepare. या सबसे लंबा तो सेकेंड वाली ऑप्शन लग रहा है. To prepare the union budget and advise the finance minister to approve. I think इसी के साथ जाएंगे सबसे लंबे. नेक्स्ट, Ryotwari, there was no intermediary like zamidar between the peasant and the government. There was no intermediary like a zamidar between the peasant and the government. Land revenue was fixed from period of 20 to 40. I think both 1 and 2 correct. The Election Commission of India is a constitutional body established under Article 324 of the Constitution. ASI is a multi-membered comprising Chief Election Commission and 2 other appointed, both 1 and 2 correct. Next, if the particle is going ongoing simple harmonic motion, which of the following situation is harmonic motion, यानी to and fro motion कर रहा है ऐसे ऐसे. Potential energy is maximum at the kinetic energy. Velocity is maximum at the mean position पे velocity सबसे ज़्यादा होगी. Potential energy is maximum at the mean position. Restoring force is maximum at the mean position. अब देखो at the end position. एनर्जी एक ही इसमें ऑड वन आउट लग रहा है वेलोसिटी वाला, तो इसके साथ ही जाएंगे बिकॉज बाकी सब में एनर्जी फोर्स की बात कर रहा है, तो मेरे ख्याल से ये और उसको मार्क भी रखते हैं. ये तो भाई छोड़ देते हैं, पता ही नहीं क्या ये. कॉस्ट ऑफ नेशनल कम. Which Indian para-athlete became the first Indian male to defend his Paralympic title in the gold in the javelin throw F64 class in Paris 2024 पैरालंपिक. सुमित अंटिल मरियप्पा, यही थे सुमित अंटिल जी. javelin. Next. Subsidiary alliance. Indian virtually lost the independence. System helped the British to counteract with any possible Russian invasion. Some people got benefited as for them remedy. देखो थर्ड तो बिल्कुल गलत है, ठीक है, तो थर्ड गलत होते ये तो होगा नहीं, तो आई थिंक फर्स्ट एंड सेकेंड. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 द मेल लिटरेसी रेट इन इंडिया showed an improvement from previous census with the male literacy 82.14 and the female literacy 65.46. नहीं मेल लिटरेसी इंप्रूव नहीं करी थी, फीमेल करी थी. डेकेटल ग्रोथ थ्रू इन इंडिया पॉपुलेशन 2000 was higher than ना both 1 and 2 wrong. Salinity of the ocean decreases with depth. Salinity at the surface water increases due to condensation. भाई कंडेंसेशन नहीं होना चाहिए, evaporation होना चाहिए. पहला वाला सही है, दूसरा गलत. The प्रधानमंत्री जनजातीय उन ग्राम योजना was launched by socio-economic development scheduled tribes in India. जनजातीय तो लग तो रहा है पहला सही है. It is being implemented tribal majority with at least 500 residents and more than. I think both 1 and 2 and R is the correct explanation भी लग रहा है. रेमंड लिंडमैन, दो तो इकोलॉजी से रिलेटेड है,
बेस्ट नोन फॉर द विच इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, कौन से इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, तो यार इनके बारे में बहुत ही सुना भी और पढ़ा भी है, तो आई थिंक एनर्जी फ्लो के बारे में इन्होंने बताया था। अब रिवाइज करते हैं पूरा प्रॉपर, उसके लिए पानी पी लेते हैं। मैंने लगाया इसमें PQRS क्योंकि ग्रेट लीडर्स हैं, फिर उसके बाद देयर लीडरशिप वाज ऑफन टेस्टेड, फिर उन ग्रेट लीडर्स की बात कर रहे हैं, या फिर ग्रेट लीडर्स। अगर मैं इनके ऑड वन आउट से जाऊं क्यू से, फिगर्स सच एज अशोका, अब्राहम लिंकन, नेल्सन मंडेला ट्रांसफॉर्म द नेशन थ्रू मॉरल कन्विक्शन एंड एम्पैथी। क्यू के बाद पी है, देयर फिगर, देयर लीडरशिप। यार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ गड़बड़ किया है, बिकॉज तुम देखो पी में पहले उसने बोला ग्रेट लीडर्स, फिर उसने बताया कि कौन कौन ग्रेट लीडर्स हैं, यानी क्यू, क्यू में बताया गया है, फिर उसके बाद उसने पी में डिस्क्राइब किया कि उनकी लीडरशिप, फिर उनकी लेगेसीज। आई थिंक मैंने गलत किया है, इसका आंसर ये होना चाहिए। इसको अनमार्क करके नेक्स्ट करते हैं। The astronauts began to collect their lunar rock and soil samples. The lunar module named Eagle touched down safely. इतना तो पता था कि 2 से शुरू होगा और 4 से ख़त्म होगा। पहले था लूनर नेम दिस, फिर उसके बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग टुक हिस्टोरिक स्टेप। मेरे ख्याल से सही है ये, इस पर मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं। ए से तो स्टार्ट होने से रहा। बी, फिर उसके बाद आफ्टरवर्ड्स, पहले उसने इनवाइट किया, फिर उसके बाद उन लोग से सेपरेटली पूछा। आई थिंक ये सही है, इसका तो सही लग रहा है। और एक अरेंज्ड इन द गार्डन, रिक्वेस्टेड, गेट आउट, इसमें डाउट है गेट आउट या गेट ऑफ। द पुलिस समहाउ मैनेज टू गेट आउट फ्रॉम द, चंगुल से भाग जाना, गेट ऑफ भी हो सकता है, एस्केप कर जाना। जस्ट गेट आउट, टीचर भी बोलती है गेट आउट, बाहर जाओ, गेट ऑफ। इसमें क्या ही हो सकता है इसका, somehow managed to get out या get off, इन दोनों में से एक है, ये तो पक्का है। इसी के साथ जाएंगे यार, छोड़ो। इस हाई एजुकेशन की बात कर रहा है ना, तो सीख में कई स्ट्रगलिंग विद आंसर्स, एग्जैसनेट की स्पेलिंग, डोपलैंगर, एपेलेशन, कैकोफनी, और एपेलेशन सही है, कैकोफनी भी सही है, एपेलेशन, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, एपेलेशन, एपेलेशन, डोपलैंगर, आई थिंक APP होता है एपेलेशन में। मेरे ख्याल से PP होना चाहिए ये, एग्जैसनेट सही है ये। बाकी मुझे उसकी मतलब उसकी मीनिंग तो आती नहीं है एग्जैजरेट की। अकर विदाउट प्लेजरेबल मोमेंट्स, फ्रेंड्स, आई थिंक ये तो पूरा ही सही होगा, सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, भी सही लग रहा है, ये भी हार्डन करना,
Merchant ही है. Collusion. Who is the prestige? Who's being considered? Whom is the prestigious selection committee considering? सही लग रहा है. Brood of people, Burfani and reviewing. Will have penis, तो सही है. May you achieve all the wish that he might achieve all the success. और supported नॉर होना चाहिए यहाँ पे, तो सही है. Very couldn't hardly not make sense. से सही है. My sister is pursuing an MBA. An MBA या फिर MBA, ये तो पता है कि एन लगेगा आर्टिकल, बट pursuing MBA, an MBA, I think सही है. an MBA बिल्कुल सही लग रहा है ये. Consider more intelligent than most of the animal. ये पैसेज डिस्क्रिप्टिव ही है. आर्ग्यूमेंट उसने कुछ आर्ग्यू तो किया नहीं है, डिस्क्रिप्शन ही दिया है. एक्सपोजिटरी डिस्क्रिप्टिव नैरेटिव. उसमें कोई नरेटर नरेट कर रहा है क्या? कुछ एक्सपोज भी नहीं किया है उसने कि वो औजा बोर्ड के बारे में कुछ एक्सपोज किया हो, पर मुझे इसमें डाउट भी लग रहा है. उसको मार्क पर भी रखते हैं. सोलेश तो सही लग रहा है. कम्युनिकेट विद द हाई स्पिरिट्स, तो सही लग रहा है. The chief matter, we have finally, यानी they had finally completed. Entire blame of the crime cannot be laid at the doors. Cannot be laid at the doors. Made my crawl ये भी something that, because ये दोनों तो हो नहीं सकते सेकेंड और थर्ड, फर्स्ट के साथ ही जाएंगे. Proof I think रिजल्ट सही है. Tedious, mesmerizing. Deliberate सही. Deliberately. लग तो ये बैलेंस्ड ही रहा है मुझे, बिकॉज इसने प्रोज और कॉन्स दोनों बताया है, तो मेरे ख्याल से होना तो यही चाहिए. कि गलत भी हो सकता है. ये भी सही लग रहा है. गोट्स. ये भी सही है. और फिर से देखते हैं यार, इंग्लिश में ये वाला रखा था ना, तो पता ही. फिफ्थ वाले में क्या था? आई थिंक गेट आउट, मेरे ख्याल से सही है ये. गेट आउट, गेट ऑफ, डिस्क्रिप्टिव, बैलेंस्ड. लग तो बैलेंस ही रहा है ये. बाकी इसमें क्या डाउट है मुझे, मेरे ख्याल से सही होना चाहिए. माइनस सब्सिडीज ये भी आई थिंक, ये मुझे पता था लैको का होता, डोम मशरूम टाइप का होता है, तो सेकंड का सी है. बाकी फर्स्ट का डी हो ही गया है. कूल. मैथोलिथ, लैपोलिथ, फैको. फैको आई डोंट नो. देन स्टे एज मीन पोजिशन, ये आता नहीं है, ये भी पता नहीं है. लेट्स नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं. एक सेकेंड, ये क्या था? बस ये क्यों अनमार्क किया है? नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं. oliveport.net correspond to the address of the protocol server documents located. So this is called a server. Oliveport का, which memory stores currently running programs that runs that the CPU is actively using cache, virtual RAM, ROM.
तो रैम होता है वो. विच फंक्शन इज यूज टू अल्फ़ाबेटिकली अरेंज द लिस्ट ऑफ आइटम्स इन द. अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना ना लिस्ट ऑफ आइटम इन द प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर. तो यार ये तो फिर सॉर्टिंग ही हो जाएगा क्योंकि अरेंजमेंट मतलब सॉर्ट करना. विच इनपुट डिवाइस इज यूज फॉर कैप्चरिंग द हैंड रिटन और ड्रॉन इमेजेस कन्वर्टिंग देम इनटू द डिजिटल फॉर्म. तो वो तो एक ही चीज़ है, ग्राफिक टैबलेट. नेक्स्ट. भाई पढ़ना पड़ेगा क्या, इसको बाद में करते हैं, लंबा लंबा लग रहा है. विच वॉट टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट वॉज अ हॉलमार्क ऑफ द सेकेंड जनरेशन. पहले में तो वैक्यूम ट्यूब था, दूसरे में आईसी था. नेक्स्ट. Instruction register holds the opcode and operands, and the operands of the current instructions being executed holds the after each instruction and fetch. क्या कह रहा है, holds the opcode and the holds the. एक मिनट रुको यार, इसको पहले तो करते हैं. holds the instruction being executed. इंस्ट्रक्शन आई थिंक पहला वाला तो गलत लग रहा है. होल्ड्स द ऑपकोड एंड ऑपरेंट्स को प्रोग्राम आई थिंक, मुझे नहीं पता, सेव छोड़ते हैं. व्हाट इज द कलर ऑफ द अंडरलाइन दैट अपीयर्स इन द MS वर्ड डॉक इफ द ग्रामर मिस्टेक. इसमें तो रेड कलर होता है, ग्रामर मिस्टेक है तो लाल कलर हो जाएगा. नेक्स्ट. Which of the following is true regarding the plugin web browsers? Plugin is a complete program or maybe a third party software. Maybe ठीक है. Plugin do not boost the performance. Plugin also referred to as extension. ये तो सही है, सी तो सही है. नहीं, सी गलत है. एक्सटेंशन कहाँ होता है? तो plugin is not a complete program and so मेरे ख्याल से मैं गैस लगाऊंगी और जो लंबा स्टेटमेंट है उसी के साथ जाऊंगी. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इंसर्टेड इन द स्लाइड इन MS पावर पॉइंट. में क्या इंसर्ट नहीं कर सकते हैं? चार्ट, क्लिप आर्ट, भाई सब कुछ ही कर सकते हैं. आई थिंक द ब्राइन, भाई छोड़ो. Which of the what is a general storage location of the BIOS program? Peripheral device, random access memory, EPROM chip या फिर cache memory. I think EPROM chip. Save and next. इसको बाद में करेंगे. Memory request contains address along with control signals, register identification, data site cells. Memory request है तो फिर मेरे ख्याल से कंट्रोल सिग्नल चाहिए होंगे उसके लिए. फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यू कैन गेट द रिजल्ट और द आउटकम ऑफ. कौन सी डिवाइस से यू कैन गेट द रिजल्ट और द आउटकम ऑफ इंसर्टिंग ऑन द स्क्रीन? सबको ही पता है कि डिस्प्ले मॉनिटर में ही होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज बाय कन्वर्टिंग इट लाइन बाय लाइन. तो ये हमारा इंटरप्रेटर का काम होता है. How can you add a new row in the Excel spreadsheet? Right click and add row. Use the enter key. नहीं. Use the insert command from the home tab. You cannot add rows. I think insert command रखो और हो जाएगा. To sum the columns, to sum columns or rows at the same time. Which of the following कौन सा फॉर्मूला तुम इस्तेमाल करोगे? तो पहला ही वाला है जो तुम इस्तेमाल करोगे. बैकअप मेमोरी को और क्या बोलते हैं? एक मिनट. बैकअप मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी मेमोरी, एडिशनल मेमोरी, सेकेंडरी ऑक्सिलरी. बैकअप मेमोरी सेकेंडरी है, एडिशनल है, ऑक्सिलरी है. एडिशनल तो लग ही रहा है, ऑक्सिलरी भी लग रहा है मुझे, सेकेंडरी मुझे डाउट है. मेरे ख्याल से मैं ऑल ऑफ दीज लगा के मार्क पर रिव्यू रखती. Which command is used to format a disk in Windows? कौन सा कमांड है जो फॉर्मेट, तो फॉर्मेट से फॉर्मेट ही करोगे तुम. मैंने कितने कर लिए? 16. पर मुझे बहुत ही ज़्यादा डाउट भी लग रहा है. मैंने कुछ तो गलत 16 थी तो मतलब 48 मार्क्स मुझे लग रहा है कि 3-4 गलत होंगे क्योंकि गैसेस और एलिमिनेशन से किया है इसमें कुछ.
Consider the following features of MS Excel. Data validation in Excel allows restricting input values based on criteria. पहला सही लग रहा है. What if analysis rules include goal? So split large into multiple smaller. नहीं पता है, छोड़ते हैं इसको. 7 नंबर इंस्ट्रक्शन, ये भी नहीं पता है, इसको भी छोड़ते हैं. मैं भी नहीं पता. 13th. 7. मैं काम करती हूँ. Let's submit the test and see the performance. रेटिंग पूरी दे देते हैं एंड सबमिट. ओके, सो टोटल जो मार्क्स हैं वो 309 हैं. मैथ्स में देख रहे हो 5 गलत है, रीजनिंग में 2 गलत हैं, इंग्लिश इज़ 123, जनरल अवेयरनेस में 37 नंबर है, 15 सही 8 गलत. चलो कंप्यूटर में क्वालिफाई है तो मार्क्स इतने ही हैं, 309. अच्छा, तो मॉक तो अच्छा है, मतलब ऑलिव के लाइफ सच में बहुत अच्छे होते हैं. दिस इज़ अ गुड थिंग. तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड इसको अटेम्प्ट करिए एंड प्लीज़ डू शेयर योर स्कोर ऑल्सो इन द कॉमेंट सेक्शन. मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में. टिल देन टेक केयर, stay safe and all the best for your respective exams. Thank you guys.